Good evening, students. Welcome to the last class of our chapter Solid State. So let's just get started. Yesterday I asked you a question about band theory, that band theory is for what? And you all have answered it correctly. It is for electrical properties of solids. So today we will study about the magnetic properties of solids, and also I'll tell you about the 7 crystal classes related to the solids. So before starting today's topic, I'll tell you about some applications of semiconductors. Okay, here are some applications of semiconductors. For example, semiconductors are used as diode. These are also used as transistor. Example, NPN type and PNP type transistors. And semiconductors are also used as photodiode in solar cells. Now, some semiconductors are made from the combination of group 13 and 15 and group 12 and 16 to maintain the average valence of 4, which is similar to silicon and germanium semiconductor. The group 13 and 15, the gallium arsenide semiconductor, is very important. It has created the revolutionary changes in the design of semiconductors. Now some semiconductors of group 12 and 16, for example, zinc sulfide, cadmium selenide, mercury telluride, etc. In these semiconductors, the bonds are not perfectly covalent and some ionic characters are there due to difference in electron negativity. So these are some application of semiconductors which you have to go through. Okay, so note it down in your copies. Now today we will study about the magnetic properties of solid, and also I'll tell you about the 7 crystal classes. Okay, so let's just start the magnetic properties of solid. So we know that the electrons are responsible for magnetic properties of anything, whether it's a compound, molecule, atom or anything. So we know that the electron revolves around the nucleus, and this kind of motion is called orbital motion. The electron revolves around the nucleus and this motion is called orbital motion. And at the same time, the electron also revolves around its own axis, which is called spin motion. So due to the orbital motion and due to the spin motion, the electron shows some magnetic moment, and both of these magnetic moments jointly contributes in the value of overall magnetic moment of that particular species. Now you all are clear about that why a species shows magnetic properties. The magnetic properties is observed due to the motion of electrons, and this motion is of 2 types: orbital motion and spin motion. Orbital motion is around the nucleus and spin motion is on the axis of electron itself. Right? So I hope that you are clear that why a solid or anything shows magnetic properties. Okay, so now we will discuss about that how much type of these magnetic properties can be observed in a species or in a solid. So a solid may be paramagnetic or diamagnetic, and then we will discuss what is ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. So we are familiar about these 2 terms, paramagnetic and diamagnetics. We study it very often. Even in class 11th, we used to discuss about the magnetic behavior while we were studying MOT, molecular orbital theory. Okay, so paramagnetic, we all know that if any species is containing unpaired electrons, one or more unpaired electrons, so that will show attraction towards the magnetic field, and this attraction is very less. This is not a strong attraction. So we know that the paramagnetic species show magnetic behavior in the presence of external magnetic field. For example, O2, copper plus 2, Fe plus 3, chromium plus 3, these all have some free electrons in their orbitals. Okay, so one thing you have to keep in your mind, that the paramagnetism is a weak attraction in the presence of external magnetic field. Okay, so the diamagnetic is the reverse of paramagnetism. When
a species does not have any free electron, all the electrons are paired, then it will show a weak repulsion force in the presence of external magnetic field. So in paramagnetism there was a weak attraction force, but in diamagnetism there is a weak repulsion force in the presence of external magnetic field, and also it will not show any diamagnetism when external magnetic field is removed. Okay, so I hope you all are clear. Some examples are there, for example H2O, NaCl, C6H6 which is benzene, etc. Now we will discuss about ferromagnetism. So these terms are particular for solids. Now what is ferromagnetism? A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium and CrO2 are affected very strongly by a magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substances. Besides strong attraction, these substances can be permanently magnetized. In solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इनको काफ़ी टाइम तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये खुद भी एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। आपने वो एक्टिविटी ज़रूर की होगी जिसमें आप एक लोहे की कील को मैग्नेटिक से किसी मैग्नेट से रब करके उसको एक स्मॉल मैग्नेट के अंदर या परमानेंट मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि लोहा या आयरन जो है दैट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इन सॉलिड्स के अंदर एक छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जो ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन स्मॉल रीजन्स को हम बोलते हैं डोमेन, और हर एक डोमेन जो है वो अपना एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब इन डोमेन का अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेस पे ये जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक है इसको हमने डिवाइड किया है। और हर एक जो डोमेन है दैट बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट। ओके, सो इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेट जो डोमेन है दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड, यानी जो डोमेन्स है आगे मैं डायग्राम में आपको शो करूंगा, जो डोमेन्स है उनका अरेंजमेंट रैंडम रहता है, और जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो ये डोमेन जो है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और फिर ये परमानेंट हो जाते हैं। यानी इस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर परमानेंट मैग्नेटाइज आप इनको कर सकते हो। Okay, the ordering of domain persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes a permanent magnet. Clear? Next we will discuss about the antiferromagnetic substances like manganese oxide showing antiferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance, but their domain are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. यानी जो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा, जब भी आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उनके डोमेन जो है वो इस तरीके से, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि वो ओवरऑल जो कंपाउंड है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसल आउट कर देते हैं। और थर्ड हम बात करते हैं फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में। फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in the unequal numbers। यानी कि फेरीमैग्नेटिज्म में भी कुछ डोमेन्स पैरेलल और कुछ डोमेन्स एंटी पैरेलल हो जाएंगे, बट वो डोमेन्स जो पैरेलल है उनका काउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिस वजह से ओवरऑल थोड़ा सा वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेगा। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट Fe3O4। एक डायग्राम से हम फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म को समझते हैं। ये देखिए डायग्राम ए में आप देखिए सभी डोमेन का जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सपोज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा।
सेकेंड वाले में आप देखिए जो इन डोमेन्स का अरेंजमेंट है वो एक पैरेलल है और दूसरा एंटी पैरेलल है, और जितना काउंट पैरेलल डोमेन्स का है उतना ही काउंट एंटी पैरेलल डोमेन्स का भी है। इस वजह से ये ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल को की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये कैंसिल कर देगा। सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक। और जो थर्ड वाला है इसमें आप देखिए दो डोमेन पैरेलल है, फिर एक एंटी पैरेलल है, फिर अगेन दो डोमेन्स पैरेलल है, फिर अगेन एक एंटी पैरेलल है। तो ओवरऑल जो पैरेलल डोमेन्स है उनका काउंट ज़्यादा है, जिस वजह से ये अट्रैक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इनका जो अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है वो कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक कम होगी। क्लियर? सो आई होप आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, on the basis of number of free electrons, right? Then ferro, anti-ferro and फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। ओके, तो ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ 7 क्रिस्टल क्लासेस के बारे में। शायद सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था कि टोटल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल हैं जो 7 क्रिस्टल क्लासेस में हमको मिलेंगे। 14 ब्रेविस लैटिसेस इन 7 क्रिस्टल क्लासेस। तो उन क्रिस्टल क्लासेस को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था CTORHMT। ओके, तो यही 7 क्रिस्टल क्लासेस हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लाइनिक एंड ट्राइक्लाइनिक। अब हर क्रिस्टल क्लास में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एज लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स और किसमें किस टाइप की यूनिट सेल मिलेगी, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए, एक नंबर है 3241121 3241121। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो क्यूबिक क्लास है उसमें 3 टाइप की यूनिट सेल्स आपको मिलेगी, और वो 3 टाइप कौन कौन से होंगे? प्रिमिटिव, बीसीसी एंड एफसीसी। देन टेट्रागोनल में प्रिमिटिव एंड बीसीसी। देन ऑर्थोरोमिक में सभी चारों टाइप्स, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद में रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक ही टाइप है, प्रिमिटिव। हेक्सागोनल में भी सिर्फ एक ही टाइप है, प्रिमिटिव। मोनोक्लाइनिक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रिमिटिव और ईसीसी। ओके, एंड ट्राइक्लाइनिक में अगेन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको मिलेगी। तो इन नंबर्स को आप एक बार ऐड कीजिए, 3 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1, तो ये नंबर आता है 14। तो ये वही 14 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस हैं जो इन 7 क्रिस्टल क्लासेस में मैंने आपको बताए थे सेकेंड क्लास के अंदर। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा किस क्रिस्टल क्लास में कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल्स आपको ऑब्जर्व होंगी। ओके, कैसे याद रखेंगे? 3241121 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इनके नाम को याद कैसे रख रहे हो आप? CTORHMT। ओके, अब बात करते हैं एज लेंस की। तो देखिए, एज लेंस के केस में आप पहले तो लिख दीजिए सभी में A = B = C, सभी में लिख दीजिए। फिर देखिए, फर्स्ट वाले को आप छोड़ दीजिए और सेकंड वाले में एक इक्वल के निशान को आप कट कर दीजिए। मीन्स A = B बट B is not equals to C। ओके, देन थर्ड वाले में आप दोनों को कट कर दीजिए। मीन्स A is not equals to B, B is not equals to C। तो क्या क्या किया हमने? फर्स्ट वाले में हमने छोड़ दिया, फिर सेकंड वाले में एक कट कर दिया और थर्ड वाले में दोनों कट कर दिया। फिर फोर्थ जो है उसमें अगेन A = B = C, यानी फोर्थ को आप छोड़ दीजिए। देन फिफ्थ में आप एक कट कर दीजिए, यानी A = B is not equals to C। फिर लास्ट के दोनों में आप दोनों को कट कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट आपने फ्री छोड़ा, देन एक कट, देन 2 कट, देन फ्री, देन एक कट, फिर 2 कट और 2 कट। तो ये आपको पता लग गया किसमें एज लेंथ इक्वल है या इक्वल नहीं है।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। आपको सीक्वेंस याद है CTORHMT, उसके बाद में आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम एंगल्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग तीनों में अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा। अल्फा बीटा गामा क्या थे? ये जो एंगल्स हैं एज के बीच के, अल्फा बीटा गामा, इनकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट के तीनों क्रिस्टल क्लासेस के अंदर तीनों ही एंगल इक्वल और तीनों ही एंगल 90 है। क्लियर? फोर्थ में तीनों ही एंगल इक्वल है बट 90 नहीं है। सो फर्स्ट 3 क्रिस्टल क्लासेस में ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड विच वैल्यू इज 90, बट इन द rhombohedral all the angles are equal but their value is not 90. देन आप देखिए हेक्सागन ऐसे बनता है, और हेक्सागन में आप जानते हो ये एंगल 120 होता है। ठीक है, तो एक हेक्सागनल सेल के अंदर 2 एंगल्स 90 होंगे और एक एंगल 120 होगा। क्लियर? 2 एंगल्स इक्वल हैं जो 90 है और तीसरा वाला 120 है। देन सिमिलर आप देखिए मोनोक्लाइनिक में भी 2 एंगल्स इक्वल है जो 90 है, बट तीसरा एंगल डिफरेंट है बट वो 90 नहीं है। अब वो क्या एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। और लास्ट क्लास के अंदर आप देखिए कोई भी एंगल इक्वल नहीं है और किसी का भी वैल्यू 90 नहीं है। तो लास्ट में ना तो एज लेंथ इक्वल है ना ही एक्सियल एंगल्स इक्वल है। तो ये बात हुई 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और उनको याद रखने की ट्रिक के बारे में। अब हर क्लास का आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स तो आप वैसे ही याद रख लेंगे, जैसे ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, जैसे मोनोक्लाइनिक का एग्जाम्पल है मोनोक्लाइनिक सल्फर। देन हेक्सागोनल का एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, और इसकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसको वुडजाइट बोलते हैं, वुडजाइट, WURTZITE, वुडजाइट। उसके बाद में NaCl क्यूबिक होता है, कैल्शियम सल्फेट टेट्रागोनल होता है, कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रोम्बोहेड्रल है, और कॉपर सल्फेट जो आप 11th क्लास में क्रिस्टलाइजेशन भी करते हो और आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखते भी हो शेप ट्राइक्लाइनिक, तो कॉपर सल्फेट जो है वो ट्राइक्लाइनिक है। तो इस टेबल को आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और इसको जितना इजीली आप याद रख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये अपना चैप्टर अभी फिनिश होता है। अब इस चैप्टर के CBSE में आए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दैट टोटल हाउ मैनी ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। आपको बताना है टोटल हाउ मैनी ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो चैप्टर 1 एंड्स हियर। आई होप आपकी ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव रही होगी। अगर आपने कोई भी वीडियो या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस किया है तो वहाँ उस पार्ट में जाकर आप उसको फिर से देखिए। और टोटल 8 पार्ट्स बने हैं, हर एक पार्ट ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का है, तो आप 2 घंटे के अंदर पूरा जो चैप्टर है उसको एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। सो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 को आप कंप्लीटली बाइंड कीजिए, इसको अच्छे से पूरा रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं नीचे पुट कर रहा हूँ उनको आप सॉल्व कीजिए।